Hello everyone, this is Aditya Mehta and you are tuned in on Personality Development Podcast. And we are back with yet another episode and we do have something very special for you guys. We all love those confident, charismatic public speakers who owns the stage, right? But here's a little secret. They all have felt tiny butterflies in their stomach while stepping up on the stage. Yes, the best of the best have been there. In today's episode, we have one such fantastic public speaker. He is not just a phenomenal open mic artist, but he is also a fellow podcaster, a voice behind tech stories. And let me tell you this, that podcast have won Spotify Spotlight and Hubhopper Podcast Award. He is the winner of both of them, and sometimes I really feel that he is a true champ. So let me allow to welcome a technology specialist by profession, podcaster by passion, and a storyteller by heart. He is Amit Bhatt. But hey, before I bring him on the podcast, guys, you know the drill. You have to hit on that subscribe button, tap on that bell icon if you haven't already. So do it now. I'm waiting for you guys. Is it done? Great. Now let's start the show. Here we go. Hello everyone and welcome back to today's episode. As I've already mentioned, we have Amit Bhatt on today's episode. Hey Amit, how are you doing today? I'm good. Thanks for the beautiful introduction. It's my pleasure to come on this podcast where I will learn about the personalities and the stories behind the people around. Yeah. Let me correct you there. Today we are here to learn from you, okay? Because you have been an amazing speaker. What I personally feel you learn while meeting new people. Reason being, when you talk to a person, definitely he shares some insights and it will help you in learning and what I can say. इतना ही है. Right. No, I mean, I completely understand. You meet people, you learn from them, and you have to be you just have to be a great observer. I Right, guess. right. And if you are a great observer, you are definitely going to learn a lot of it. The reason why I said that, because we are going to learn from you, because you have observed a lot of things in your lifespan. You have been the winner Right. of the podcast awards as well. That's somewhere, I feel that I will win it someday, but Yeah, definitely you will win. of course. Yeah. So, coming back to the show, and I've just given a great introduction, but I have some questions as well. Yeah, Okay. please. And definitely I have a lot of them. I'm going to ask a lot of questions today, and that's the reason you are here today. I'm ready. Yeah, good. Okay, so Amit, tell me one thing. Firstly, I have just given a very short and crisp introduction of yours, but if you would like to give a detailed introduction to the audience, that would be Right. really amazing. I started my career as a teacher. I was a .NET trainer where I teach people about .NET technologies, where people learn about the UI, UX and the backend part. So then one day I started exploring about the jobs in IT and I got an opportunity to work in an IT company which work on supply chain management. This is how my career starts in IT. In 2021, I thought to do something on audio. Reason being, in my college days, I was the part of radio station Indore. So I thought to give a try. सोचा करते हैं कुछ रेडियो पे काम. और I always believe stories connects two people hearts. Specifically दो लोगों का दिल कहानियों से जुड़ता है. Yeah. और I was good into Hindi, so I thought to explain everything in Hindi. So I started my podcast on Spotify. But मुझे लोगों ने बोला who is going to listen the audio shows because people usually watch video on YouTube. ठीक है करते हैं. How to start? Because everybody was talking about love, what I can say, other stories specifically behind on horror genre and all. But my niche was more on technologies, so I thought कि technologies को कहानियों से सुनाया जाए, सिखाया जाए. So my first story was on IoT, Internet of Things, where I tried to explain कि IoT से हम कैसे समय यात्रा करेंगे, how your life will be changed with IoT. तो छोटी सी कहानी सी सुनाई, लोगों को बड़ी अच्छी लगी और वो सॉर्ट ऑफ वायरल हो गई ऑडियो पे.
फिर मोटिवेशन मिला, चलो करते जाते हैं। तो ऐसे करते करते 100+ एपिसोड्स हो गए। बीच में इन 2022 स्पॉटिफाई अनाउंसेस दिस स्पॉटलाइट वाला कंपटीशन। सो सोचा चलो अप्लाई करते हैं, और समहाउ विद लव ऑफ ऑडियंस एंड ऑल आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू गेट एन अवार्ड फ्रॉम स्पॉटिफाई फॉर स्पॉटलाइट। पैसा भी मिल गया। दे गिव मी वन गुड माइक, यति माइक, ब्लू यति, Yes. और कुछ अच्छा पैसा मिल गया। तो बड़ा अच्छा लगा कि यार अब तो इसमें पैसा भी है। Right. सो आई यूज टू मीट अदर पीपल हु आर डूइंग समथिंग इन पॉडकास्ट। कैसे कमाओगे पैसा यार, बातें चल रही हैं, कहानियां चल रही हैं, पर हाउ यूल अर्न। फिर किसी ने बताया कि यार इसके पीछे CTA होना चाहिए, तो कॉल टू एक्शन क्या है। तो स्टार्टेड पिचिंग पीपल ऑन टेक्नोलॉजीज, बिकॉज माय पैशन इज टू टेल और एक्सप्लेन टेक्नोलॉजीज विद स्टोरीज। कहानियों के माध्यम से लोगों को सिखाने की कोशिश थी। IBM को पिच किया, IBM मिला मुझे पहली बार। तो आई वॉज ऑथराइज ट्रेनर ऑफ IBM, स्पेसिफिकली AIML। ऐसी हमारी कहानी शुरू हुई। 2023 में हवा पर एक अच्छा इंडिया का प्लेटफॉर्म जैसे स्पॉटिफाई है, वो पॉडकास्टर को बड़ा मोटिवेट करता है और प्रमोट करता है। तो उनका भी कंपटीशन मिला, तो उसमें पार्टिसिपेट किया और मिल गया अवार्ड। 2024 के अंदर भी पार्टिसिपेट किया था, पर टॉप 3 में रह गए, उसमें मिला नहीं। और ऐसे जर्नी चली है, आपसे सीखते रहते हैं, आपको देखते रहते हैं और थोड़ा इंप्रूव करते रहते हैं अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को। So guys, just to let you know that even a podcast who is a winner still learns from this podcast, okay? So make sure to always follow this Yes. podcast. And one more thing, as you told about pitching your ideas and pitching your things on the podcast, बस ये बात निकली है तो मैं बता रहा हूँ. So guys, if you need any sort of communication coaching, if you are preparing a presentation and if you require help in that, you just have to click on below TopMate link and you can just reach over there. And I'm going to teach you personally about public speaking or communication coaching as well. So make sure to do that. ये तो बस बात निकली थी, तो I thought नहीं, जरूरी है। कम्युनिकेशन प्ले अ मेजर रोल इन एनी इंडस्ट्री, right? वेदर यू इन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और IT, टीचिंग। और टीचर जो होता है, कम्युनिकेशन अच्छा होता है। टीचर का कॉन्फिडेंस भी वहीं से आता है, क्योंकि बहुत सारी पब्लिक में बढ़ाता है, वेदर इन इंग्लिश और हिंदी। सो कम्युनिकेशन इज अ पार्ट ऑफ योर व्हाट आई कैन से, मेरी मेन स्ट्रेंथ जो है कहीं भी, वो कम्युनिकेशन ही होगी। Of course, यू विल लर्न फ्रॉम दिस गाय। thank you so much. And I know that personally because we have met at an award function. यस, And you told me and just came to me and said, चल यार कोई और लोगों से भी connect करते हैं. That's how our journey started. राइट। So that was pretty good. It's really nice to meet new people because नए लोगों से मिलते हो, if they are good they become strength of yours। अच्छे दोस्त बनते हैं या कोई कनेक्ट बनता है। खराब है तो उनसे एक बार विश्वास करो, बट उनसे दूरी बना लो, बिकॉज नेगेटिव एनर्जी आपको परेशान करेगी, बर्बाद करेगी। बेटर बी इन गुड पीपल अराउंड, उनसे सीखते रहोगे, अच्छी वाइब रहेगी, तो आपका जीवन भी सुगम रहेगा। Right. And that's really nice. I mean, this is a testament of friendship that राइट। became at a award function where we didn't knew each other at all. मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस पॉडकास्ट पे आऊंगा अचानक से, विल जस्ट हैव अ कन्वर्सेशन Right. अराउंड द एक्सपीरियंसेस। इट्स Yeah. माय प्लेजर। Right. Thank you so much. एक चीज से मैं बहुत रिलेट कर रहा हूँ because when you spoke about that कौन ही सुनेगा Spotify पे, ऑडियो पॉडकास्ट कौन सुनता है, and later on even I figured out that there were good number of followers on Spotify rather than YouTube. And the best thing about being and hosting a Spotify podcast or maybe the audio podcast as well, it was really like anyone can listen to it while driving, while doing Right. their household work and everything. And that's really the beauty about it. And also you shared about your RJ journey as well. So when did that started? And I really want you to tell the audience with whom you were working as an RJ as well. Will correct you, I was not a RJ, I was Uh-huh. just assisting him, the famous RJ of India. Right. His name is Mantra, Yeah. and मुंबई के लोग तो काफी जानते हैं उसको, Of course. मंत्र मुग्ध। आई वॉज जस्ट वर्किंग विथ हिम, वहीं से सीखा। मैं RJ नहीं था, आई वॉज Right. जस्ट पार्ट ऑफ हिज टीम, लाइक यू हैव टीम, Hmm. सेम उसी तरह से स्टार्ट हुआ। पर किसी को देखते हैं तो अब मोटिवेशन होता है कि यार हमें भी करना है, बिकॉज रेडियो से क्रेज बड़ा खतरनाक होता है, कानों को अच्छा लगता है, Hmm. कर्ण प्रिय आपको आवाज लगती है लोगों की। Right. तो आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रॉम हिज एपिसोड्स और शोज स्पेसिफिकली, Hmm. वहां से सीखा। फिर थोड़ा कीड़ा होता है ना कि हमको भी कुछ करना है, तो कॉलेज लाइफ में यू होस्ट इवेंट्स,
कोई एनुअल फंक्शन है तो वहाँ पे आप बढ़िया आ गए हाँ, और कुछ बोलने लगे, yeah, कविताएं सुनाने लग गए, कविताएं आपको नहीं आती तो भी आपको कविताओं की एबीसीडी नहीं आती लेकिन आप कविताएं सुना रहे हो, तो वैसे ही कॉन्फिडेंस बढ़ता है. व्हाट आई Right. पर्सनली फील, स्टार्ट टॉकिंग टू पीपल, आपको अच्छा लगेगा, फिर ग्रेजुअली यू लर्न. Correct. क्वालिटी तो धीरे धीरे आती है, हम्म. पहले आपको मुझे लगता है काम करना चाहिए. राइट, दैट्स मतलब स्टार्ट कर दो, बाकी आगे का वो देखना तो होता पड़ेगा. ही है, क्योंकि देखो यार, मेरे पास भी, मैं जब वीडियो स्टार्ट किया था मेरे पास कोई अच्छा कैमरा नहीं था, फोन पे ही करता था. खुद से बात करना बहुत टफ है. इट्स रियली वेरी टफ इफ यू टॉक टू योरसेल्फ ऑन वीडियोस. हम्म. आजकल तो बहुत सारे ऐप के नाम नहीं बोलूंगा जिसपे सब कुछ लिखा हुआ आता है, स्क्रिप्ट. तो बहुत सा इवन मूवीज में देखते हैं हम कि ये बड़ी बड़ी मूवीज, इसमें हीरो जो है वो वहां देख के बात करता है, वो पढ़ के बोल रहा है सारे डायलॉग. टेक्नोलॉजी का फायदा भी है, पर उस समय नहीं होते रिसोर्स आपके पास, छोटे से रिसोर्स होते हैं. यू स्टार्ट लर्निंग और खुद से बात कर करके. मुझे सीखा कैसे है, मैं, मेरे एक कोच हैं अभी सर, अभी आर्य, उन्होंने कहा था कि यार रोज के इतने 2 वीडियोस बनाओ, हफ्ते के इतने वीडियो होना चाहिए, स्टार्ट मेकिंग वीडियोस. Right. Where I started my journey as a video wala thing also. Wonderful, wonderful. That's wonderfully said, and I personally relate to it a lot. Okay, because मेरा first public speaking experience काफी बुरा था. Okay, I mean I literally remember that entire journey, and उसके बाद मैंने सोचा था कि मैं कभी भी स्टेज पे नहीं जाऊंगा. Okay, but life had a different plan, and it turned out pretty well. And audience, I have shared my first public speaking journey on previous episodes as well. Also, I have shared it on LinkedIn. So if you ever want to follow me on LinkedIn, I mean, I'll mention the link in the description. Coming back to you, Amit. इससे let me interrupt you. इससे मुझे भी याद आ रहा है कि मेरी पहली जर्नी क्या थी. Okay. होता यही है, I was going to ask you that. honestly. फेलियर्स वहीं से आते हैं. कॉलेज के डेज में जब आपके प्लेसमेंट्स होते हैं तो पीपल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट कि आप अपने आप को, एक्सटेम्पोर टाइप जो होता है ना, इंट्रोड्यूस करो क्या आपका Right. पसंद है. और उस समय इंग्लिश अभी भी ठीक नहीं है, उस समय भी नहीं थी, पर डर जाते हो आप, आपको लगता है course. जीवन खत्म हो गया, Hmm. अब क्या करेंगे यार, पीपल आर जस्ट जजिंग यू कि इसको कुछ नहीं आता. Hmm. धीरे धीरे फिर आप लोगों से बात करते हो तो मुझे लकीली अच्छे मेंटर्स मिले, अच्छे टीचर्स मिले, उन्होंने मोटिवेट किया कि अल्टीमेटली इंग्लिश इज नॉट दी ओनली थिंग, आपको बोलना आना चाहिए, कॉन्फिडेंस पहले सीखो, Right. देन यू विल ग्रेजुअली लर्न व्हेन यू स्टार्ट टॉकिंग टू पीपल. Right. होता है. मेरा फर्स्ट क्लाइंट था व्हेन आई वाज इन आईटी, सिंगापुर का क्लाइंट था. उससे पूरे समय आपको यू टू स्पीक इन इंग्लिश ओनली. उस समय तो गूगल भी आपके पास अवेलेबल इतना हाँ. आसानी से नहीं था, अब तो हमारे पास में चैट जीपीटी भगवान है. Hmm. तो हम असिस्टेंट लेते हैं, लोगों से सीखते हैं. तो फर्स्ट एक्सपीरियंस बुरा था, लेकिन बुरे से रुकना नहीं है, दैट इज द ओनली थिंग. कई बार क्या होता है, बुरा होता है तो आप रुक जाते हो कि अरे अब तो खत्म हो गया जीवन. लेकिन व्हेन यू मीट पीपल लाइक यू, वेयर पीपल मोटिवेट यू कि यार नहीं, कम्युनिकेशन इज इम्पॉर्टेंट. Right. कॉलेज में लगता था बड़ा बकवास कि व्हाई पीपल आर टीचिंग कम्युनिकेशन, Right. पर एक्चुअली कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर एनी पर्सन, वेदर Right. यू आर हाउस वाइफ, फैमिली वाले हो, घर पे कोई काम कर रहे हो, इवन किसी आजकल तो बोलते हैं कि अगर आप अच्छे नेता हो तो आपको बोलना आना चाहिए. हाँ, अच्छे नेता को बोलना जरूरी है, तो उसको भी कम्युनिकेशन बिल्कुल. सीखना चाहिए. बिल्कुल. कुछ नेता है जो नहीं सीख पाए, पर सीखना पड़ता है. तो अल्टीमेटली कम्युनिकेशन इज फॉर एवरीवेयर, एवरीवन. वैसे कौन से नेता है जो बोलना नहीं सीख पाए, जरा नाम बता सकते हो? नहीं, नाम सब जानते हैं, ठीक है. वो पैसे निकालते हैं एटीएम से जब नोटबंदी Of होती है, course. और फिर अपना दिखाते हैं कुर्ता Of course. फटा हुआ. Of course. Podcast just अभी स्टार्ट हुआ है guys. But really what I really want to know over here is अभी आप मुझे बताओ कि आपका फर्स्ट पब्लिक स्पीकिंग एक्सपीरियंस क्या था. वो तो आपने कॉल के बारे में बताया है, ओके, बट व्हाट वाज योर फर्स्ट पब्लिक स्पीकिंग एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस की बात करें तो जब प्रोफेशनल लाइफ में एज अ टीचर टू टी स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स के साथ बात करना, स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन, वो एक बहुत बड़ी बात होती है. इसमें डर लगता है कितने लोग आएंगे, राइट, बिकॉज डर सबको लगता है. ऑफ कोर्स. यू आर प्रो इन एनी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट, आप अगर टेक्नोलॉजी वाले हो तो भी आपको लगता है अगर आप बिल गेट्स से बात करो तो क्या बात करोगे. हाँ, हो सकता है बिल गेट्स को भी लगता हो किससे बात करने के लिए एक पल क्या बोलो, या, नेवर नो. पर हाँ, 10 सेकंड तक आपको डर लगता है, 10 सेकंड में आप उस एनवायरनमेंट में ढल जाते हो. वही मेरे साथ हुआ. When I was just teaching these students of specifically on .NET, डर लगा था क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे Right. पढ़ना है. शुरू में पहला लेक्चर में बकवास होता था, बट कि कैसे पढ़ाओगे. राइट, बट इफ यू टॉक अबाउट रियल टाइम एग्जांपल्स तो फिर आप कॉन्वर्सेशन मोड में आ जाते हो. करेक्ट, रिलेट टेक्नोलॉजी विद द एग्जांपल्स, तो बहुत अच्छा लगा. राइट, पर हाँ, एक्सपीरियंस की बात की तो अभी आई गेस 3 साल पहले एक्सपीरियंस हुआ था मेरे साथ.
That was specifically I was doing some TEDx type of talk, not a TEDx exactly. हम्म। पर वो मुझे ये पता नहीं था लाइट सारी बंद हो जाती है सामने में। अच्छा। Go to stage, तो आपको कुछ नहीं दिखता है, हाँ। आपके ऊपर सारी लाइट होती है। हम्म। That was my first experience, तब मैं घबरा गया था क्योंकि इतने बड़े स्टेज पे मैं गया नहीं था। हम्म। स्पेसिफिकली जब मोर देन आई गेस 1000 के आसपास क्राउड होगा, कोई दिख ही नहीं रहा, पूरा राइट अंधेरा है। राइट। आप कैसे बोलने वाले हैं? हाउ यू ऑफ कोर्स एक ऑफ कोर्स। डमी कैरेक्टर बनाया, बोलू मैं टॉपिक पे बोलूं, हाँ। मेरे को बोलू दिख रहा है, मैं उससे बात कर रहा हूँ, लोग नहीं दिख रहे। हम्म। तो दिस इज वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस व्हिच आई फेस लास्ट फ्यू इयर्स। हम्म। पता लगा कि हाउ यू टॉक टू राइट पीपल ऑन बिग स्टेजेस। राइट। लोगों के लिए बोलना बड़ी बात है। हमें लगता है क्या बात कर रहा है, बस नहीं, हाँ, but it's a big thing. डिलीवरिंग योर थॉट्स टू डिफरेंट पीपल Yeah. और फिर उनके क्वेश्चंस लेना, क्योंकि वो दिख भी नहीं रहे। क्वेश्चन भी तब होगा जब उनके ऊपर कैमरा या लाइट जाएगी। हाँ हाँ। दिखते नहीं, आपको पता नहीं कहाँ से बोल रहे। राइट। मैं देखता था, मैं बस वाचिंग दिस शो कि वो पूछता था आप कहाँ हैं। शाहरुख खान को भी कई हाँ, बार हाँ। पूछता, कौन है, कहाँ है, तो होता है। राइट। That was the learning. पर धीरे-धीरे when I started this solo podcast, मुझे पता ही नहीं लोग हैं कि नहीं, और ऑडियो को तो कोई पता ही नहीं है। राइट। It's just a one way thing, जॉब कर रहे हो, चले जा रहे हो। पर फायदा ये था कि फोन है, जस्ट डू रिकॉर्डिंग। राइट। डर किसी का नहीं था, खुद का ही फोन है, जब बंद करना बंद कर दो, कोई है भी नहीं। बट व्हेन यू गो दिस टाइप ऑफ पॉडकास्ट, यू हैव पीपल जो कि काफी सारे टेक्नोलॉजी वाले लोग होते हैं जो काम करते थे, टेक्नीशियंस होते हैं। डिस्ट्रैक्शन इज देयर। Yeah. So this was the experience. Right. Wonderful. Two things which comes to my mind. One is there was this amazing guy who came on this podcast. Okay, his name was Larry Wilson. He is Larry Wilson. Okay, and he is also an Emmy-nominated producer and writer who came on this podcast. And we did this amazing episode on communication for building relationships. In that, he said this amazing statement. Okay, that the good news is no one in this entire world has died of embarrassment. So if you get embarrassed on stage, it's not the end of life, okay? It's just a learning experience, and it's fine to get embarrassed sometimes because you're not going to die from it. So that's one thing which just reminded me. So people, it's fine to have that first experience and to get embarrassed as well. And the second thing which reminded me of, trying to do some jugaad, okay, when it's your first experience, okay, because of course डर सबको लगता है, फर्स्ट हो चाहे 100, तो डर फिर भी लगता है, बट फर्स्ट में डर ज्यादा लगता है क्योंकि इट्स लाइक पहले कभी किया ही नहीं है। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस ऐसा ही हुआ था, मैं बस अपने सोशल एंजाइटी के बबल से ऐसा बाहर निकल रहा था, एंड जब भी ऐसा अनाउंस हुआ कि देयर इज अ ग्रुप प्रेजेंटेशन एंड एवरीवन हैज टू गिव अ ग्रुप प्रेजेंटेशन इन फ्रंट ऑफ 150 पीपल, बिकॉज आई वॉज गेनिंग सम कॉन्फिडेंस, तो मैं क्या कर रहा था, मैं लोगों को टिप्स दे रहा था। आई कन्वीनियंटली फॉरगॉट दैट इवन इट वॉज माई फर्स्ट टाइम ऑन स्टेज, एंड मैं लोगों को एडवाइस दे रहा था, देखो ऐसा करने का है ना, एंड देन आई वेंट ऑन स्टेज, आई फ्लंक्ड, आई वॉज सो फ्लंक्ड। मतलब लोगों को मेरे पे ज्यादा कॉन्फिडेंस था और तभी मुझे मेरे पे ही कॉन्फिडेंस नहीं रहा था। सो दैट हैज बीन द आइडिया। पर उसके बाद जब भी मैं गया था, सो आई हैड मेमोराइज्ड द स्क्रिप्ट इवन वाइल टीचिंग, ओके। तो मैंने लिटरली अपनी स्क्रिप्ट को रट्टा मार लिया था कि अभी कुछ भी होगा, आई विल रेटोफाई इट एंड आई विल स्पीक, एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग जहाँ पे मैं कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रहा हूँ, ओके। सो दैट वाज समथिंग व्हिच आई हैड ट्राइड एंड इट वर्कड आउट रियली वेल, and then you literally start getting confident. So audience, do let me know आप लोगों ने अपनी first speech में क्या किया था. Do let me know in the comments. I mean, your comment might help someone, you never know, right? So make sure to do that. Coming back to you, Amit, एक और चीज मैं आपको पूछूंगा, okay, and this is something related to you being on open mics as well, okay, where you recite your poetries and narrate your stories so beautifully, okay, that sometimes हम लोग काफ़ी उसमें डीप डाइव कर लेते हैं, okay. So ये जो ओपन माइक का जो ये है आपका आइडिया जो था, वो कहाँ से आया था? लाइक when was your first open mic and when did you thought कि यार ये करने में मुझे मज़ा आ रहा है? बिल्कुल सही बात बोली आदित्य आपने। फर्स्ट ओपन माइक फर्स्ट एक्सपीरियंस जो था
बकवास था, होता है डर जाता बहुत बुरा हुआ था पास ओके कविता ही भूल गया ओह और फिर का टाइम चला गया तो वहाँ से हटा दिया गया अल्फाज करके एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म है जिसमें मैं गया था राइट बड़ा उदास हुआ बड़ा बेकार भी लगा कि यार हम तो बोल ही नहीं पाए राइट कैसे होगा राइट कि इफ समबडी इज राइटिंग ऑन पेपर तो जरूरी नहीं कि वो बहुत अच्छा प्रेजेंटर हो या ओपन माइंड में जाए कई लोग बहुत अच्छा लिखते हैं पर बोल नहीं पाते राइट कई लोग बकवास लिखते हैं पर उसको प्रेजेंट इतना अच्छा करते हैं कि बहुत ही अच्छा लगता है अद्भुत लगता है हम्म जब मैं रेडियो के साथ काम करा स्क्रिप्ट लिखता था हम्म उसके लिए वहां से शुरू हुआ राइटिंग हुआ हम्म राइटिंग के साथ टीचिंग हो गई तो कॉन्फिडेंस आ गया कि आप तो बोल सकते हैं राइट फिर सेकेंड एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ जब यूआर कोड करके एक बड़ा बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है जो आप शायद या एग्जिस्ट नहीं करता यस है यस यस उस पर लिखता था मैं उनके फिर ओपन माइक में गए वहाँ हम्म मैंने गया ओपन माइक में अपनी कविताएं सुनाई लोगों को ठीक लगी तो फिर जाने लगा मैं हम्म तो ऐसे स्टार्ट हुई मेरी जर्नी इंदौर शहर से और मैं करता रहता हूँ ओपन माइक वंडरफुल दैट्स प्रीटी अमेजिंग एंड ओपन माइक में तो ऐसा भी होता है ना कि आप मोबाइल से देख सकते हो अपनी पोएट्रीज बट यू डिसाइडेड दैट यू वुड गो वो राइट मुझे अवे तो मेरा पर्सनल सजेशन नहीं देखना चाहिए राइट रीजन क्या होता है ना कि अगर आप अपनी कविताओं को चार पांच जो आपने कहा कि आपको रटना जरूरी याद रखना जरूरी हाँ व्हेन यू प्रेजेंट समबडी योर थॉट्स आप सोच लेके ना करें राइट करते हैं लोग उनका तरीका हो सकता है मेरा सोचना है कि आपको आप डिस्ट्रिक्ट खुद नहीं होते क्योंकि आप कई बार तो फोन बंद हो सकता है आपके दिमाग में चलता रहता है कि नेक्स्ट लाइन पर जाना है बेटर आप नेचुरल में भूल जाओ लाइन चलेगा पर आप के जेस्चर हाथ जेस्चर चलना चाहिए बात करते हो लोगों को देखते रहो राइट तो वही आप कम्युनिकेशन में सिखाते भी हैं राइट तो वही चीज़ें ज़रूरी है मुझे लगता है हमेशा पढ़ के बोलना सही नहीं होता है पर इसका मतलब ये भी नहीं कि आपको प्रिपरेशन करके नहीं जाना है हाँ आपके पास होना चाहिए कागज आपका पढ़ लो डर लगता है तो आप ऑफिस में रखो ऑफ कोर्स आपके पास है कोई जुगाड़ है चलो शुरू हो जाओ नोबडी वांट्स टू जज यू ठीक है right of course no thank you so much actually honestly speaking it is a great learning for me firstly because whenever I go to open mic I remove my phone and start reading from it but I feel मुझे एक बार अपनी बेइज्जती करवानी पड़ेगी okay so that I can recite my poems without looking into the phone so I'm sure I'm going to do that प्रैक्टिस करना चाहिए लोग ऐसा बोलते हैं हम तो ऐसे पढ़े ही नहीं यार एग्जाम में भी पहले बोलते हो हम Of तो course. पढ़ा ही नहीं था हमारे हो गया नहीं भाई सब करते हैं तैयार यही बात है कि क्यों नहीं आप पढ़ के जाते हो चार बार उसको एक खुद बोलो आईने में दोस्त को राइट मुझे मेरे कॉलेज के टॉपर की याद आ गई ओमकार दिस इज फॉर यू ह्यूज शाउट आउट टू यू अपने अपने दोस्त लोग का नाम कमेंट में ज़रूर बताना कोई ऐसा कॉलेज टॉपर रहा होगा जो हमेशा ऐसा बोलते हैं यार मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा है बट हमेशा नंबर उसके ही अच्छे आते थे बट या दैट इज़ ट्रू हमेशा प्रिपरेशन होती है that's really well said and I believe that is a great learning for me मैं एक बार ज़रूर अपनी बेइज्जती करवाऊंगा in the open mic and I'm definitely going to do that now coming to the next part okay because you see I have been trying many things on open mic itself so now I am trying with comic as well okay stand up comic भी मैं कोशिश कर रहा हूँ okay but I feel it is quite too much for me but when we were speaking to each other, I do remember that you were also talking about converting your tech stories into tech stand-ups as well, and you have already done it, by the way, in the very recent. this slide में किया मैंने हाँ, right. How was that experience? And tell me one thing, how did you prepare for it as well? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था बिकॉज हुआ ये कि टेस्ट ड्राइव विद कम्युनिटी बेसिकली कंडक्ट दी प्रोग्राम फॉर दी Hmm. प्रोफेशनल्स लाइक हु इज इनटू टेस्टिंग और ये Hmm. तो दे जस्ट कॉल्ड मी ऑन लिंक्डइन मुझे प्रोफाइल देखा टेक्स्ट किया कि हमने पढ़ा Hmm. तो मुझे लगा यार लर्निंग में थोड़ा फन होना चाहिए बिकॉज नोबडी वांट टू लर्न दीस डेज Yeah. नोबडी वांट टू लर्न एवरीबॉडी Correct. वांट टू Hmm. थोड़ा सा मसाला होना चाहिए बिकॉज मसाला होगा तो मजा आएगा याद रहता है Right. प्रिपरेशन कैसे किया एआई आ गया एआई पे बहुत सारा लोग बात करते हैं एआई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई पे जोक होना चाहिए मस्ती होना चाहिए सबको आजकल एआई सबको पता है वेदर यू आर फ्रॉम टेक्निकल बैकग्राउंड नॉन टेक्निकल Non-technical. मेरा फोकस ये था कि अगर देयर डिस्कस मैं कोशिश करूंगा उन्हें ऐसी बातें मतलब रियल लाइफ एग्जांपल्स हो Hmm. जो उनको रिलेट कर पाए Right. जोश देखते हैं और सबसे रिलेट कर रहे हैं चैट जीपीटी से Hmm. ट्रेन में आना था तो देखा था एक बंदा चैट बोलता चैट जीपीटी से बात कर लेता हूँ ही वाज जस्ट
हो सकता है कि कहीं ऑफिस के लिए काम करता होगा, वो टेक्निकल दिखा भी नहीं मुझे, हम्म, और उसका चैट जीपीटी था फोन पे, वो बात कर रहा था उससे हिंदी में, हम्म, स्टॉक के बारे में पूछ रहा था। तो लोग पीपल आर टॉकिंग टू चैट जीपीटी, तो right. पीपल नो व्हाट एआई, हम्म, क्यों ना हम उनको रिलेट करें, right. उसमें फन हो, कहानियां कविताएं हो, तो हम्म, मजा आता है। हम्म, मेरी 45 के आसपास ऑडियंस था, अच्छा फीडबैक मिला मुझे, काफी अच्छा लगा, लोगों ने बोला मजा आ गया, क्योंकि हम्म. मैंने वहाँ पे टेस्टिंग के साथ साथ हाउ टू टेस्ट एआई वाला मैंने प्रोग्राम भी किया था। Wonderful. That's pretty amazing. I love that. That's a wonderful experience to have. I mean, converting your stories into text stand up is something which I would definitely want to learn from you. Okay, because you always try something new on stage, and that's one thing which people are really afraid of. Okay, पर वो कैसा है ना कि एक बार बेइज्जती का डर निकल जाता है तो बाकी सब डर अपने आप और क्या, निकल जाते हैं. And that's really the story of any public speaker you pick nowadays. And they have become so solid speakers after Right. that beizati. So I believe it's really important to get beizat one time at least, so that you get to learn from it. So that's pretty amazing, and I really like that idea of your that you are doing a tech thank stand-up. you. Now coming to the next part, okay, where so I really like that idea. Now coming back to one last question, I promise. Okay, and that question would be: if you are a speaker, okay, and you go to different open mic, you go to different teachings and everything. Okay, you do a lot of teachings as well. What's always the experience before going on the stage? Are there butterflies now, or it's just another show for you, and you go without any sort of fear? What's the feeling now? राइट, इफ मल्टीपल स्पीकर्स आर देयर ना, तो फिर थोड़ा सा लगता है। लगता है. इफ यू आर दी ओनली स्पीकर, तो फिर आपको लगता है हमारा ही शो है, तो फिर कॉन्फिडेंस रहता है, बिकॉज पहले किसी का सेशन आपने सुन लिया, तो यू हैव प्री कंसीव नोशन कि अब यार कुछ कैसे बोलना है, एक्सपेक्टेशन सेट हो गई है, तब डर लगता है। Right. तो डर सबको लगता है, पर डर के आगे जीत है, Right. तो जीत जाते हैं फिर। Wonderful. So, guys, why I asked that question is that even the best speakers face tiny butterflies in their stomach. Even till date, even I do feel before recording this podcast as well. Even I have tiny butterflies in my stomach, and for now, somewhere I'm feeling hungry as well. But that's not the point. So, it is fine. It is okay to feel or to have that sort of fear, and it's completely fine to have that. So don't worry about it. Just go over there and start speaking on stage, right? Now, coming back to you, Amit, this is going to be my last question. Again, I promise this will be the last one. If people wants to get connected with you, if people wants to know more about technology from you, if people wants to, get connected with you related to public speaking or listen to your podcast as well, how can they find you on the internet? Yeah, they can look for Linktree account of mine. My account name is Tech Stories, TechStories. They can just search there itself. They will get all the accounts of mine, and they can always connect to me. Yeah. I'm not active more on LinkedIn, but will definitely learn from you something about the writing. We'll try to write something more on LinkedIn. Of course. तो LinkedIn पे नई चीज लेके आ रहा हूँ मैं, तो Ah. we'll definitely will try something on LinkedIn. So you Soon. you want to be a competitor of mine everywhere. Not a competitor. We both learn from each other, और आपसे तो मैं काफी सीखा हूँ, पर ना कंपटीशन की बात होगी तो तगड़ा तो होगा। Guys, we do banter each other, and I don't know. He is not bantering me on mic because this is my podcast, but still, I really appreciate that. But yeah, thank you so much for sharing that. So, guys, do mention him while you are connecting with him that you have listened to him on Personality Development Podcast. Only then he's going to reply. Now, ध्यान रखना, सब्सक्राइब कर लो। and do subscribe to this podcast. Yes, thank you so much, Amit, for sparing Yeah. good time on the podcast, to take out your valuable time to be on the podcast. I really appreciate it, and I'm sure we are going to have much more collaborations in different Right. parts of this podcast. So thank you so much for doing that. My pleasure. Thank you. And thank you, audience, for being over here and listening to this entire conversation. I'll see you in the next one. With that being said, make sure to share this episode with your loved ones, because अकेले लड्डू खाना अच्छी बात नहीं होती है.
So make sure to do that. Thank you so much. This is Aditya Mehta along with Amit Bhatt signing off from this episode. See you in the next one. Till then, peace.